Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Geetika Bansal and today video is quite different from my previous video because in this video I will tell my whole story with you. I know I didn't have any experience of interview that how I rejected or selected, but still I have my story that how I decided to be a cabin crew member. किसी मिडिल क्लास लड़की के लिए ये सोचना कि कैबिन क्रू बनना है, अपने घर वालों को मनाना ही बहुत बड़ी बात होती है. यूट्यूब पे इस टॉपिक के बारे में किसी ने बात नहीं कर रखी, बट स्टिल आई वांट टू नो अबाउट द फीलिंग्स दैट हाउ अ गर्ल फील दैट हर पेरेंट्स आर accepted her job. First of all, I would like to tell you that my English is not that perfect yet, but yes, I'm improving a lot. I'm really practicing on my communication skills. So if I done any grammar mistake in this video, so please avoid it. Well, those are new on my channel, I would like to give a short intro to you. Well, my name is Geetika Bansal and I am 18 years old. I have recently completed my senior secondary education and I want to be a cabin crew member. That's why I'm really working hard on my communication skills so that I can fluently speak with people like करके बोल पाऊँ मैं बस English. So let's start the video, guys. Since 2023 or 24, I will decided to be a cabin crew member. Yes, guys. मैं तब शायद 11th standard में थी. I literally don't know how I get an idea to be a cabin crew member. Like maybe I scrolled a reel and I watched an air hostess and decided to be a cabin crew member. I don't know. Literally, I don't know. But this thing literally obsessed me. I really want to be a cabin crew member madly. Even मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूँ cabin crew member के लिए. As when I decided to be a cabin crew member, firstly I talked with my elder brother. Those who has elder brother, they know how's the power of elder brother. Like पापा की कभी कभार इतनी नहीं चलती, जब elder brother अपना बोल देना ये तो ठीक है. तो मैंने अपने brother को बोला like I want to be a cabin crew member. It is a good job and ये facilities हैं और ये करना पड़ेगा. And he agreed. And I was shocked, literally shocked that he agreed. As मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी जिनके पेरेंट्स थोड़ा मतलब झिझक करते हैं मानने के लिए, like it's a not safe job and sometimes people think about that this job is only for waitress job and I literally anchor on them क्योंकि वेटर की जॉब सिर्फ नहीं है guys, इसमें बहुत कुछ करना पड़ता है, like बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है जॉब को लेने के लिए. Well, जब मेरा ब्रदर मान गया ना इस जॉब के लिए, आई वॉज ओवर द मून और मुझे ऐसा था मैंने 50% जंग जीत ली, मैंने 50% में बनी गई उससे मुझे ऐसा लग रहा था. And then I gradually talked with my father and mother that I want to be a cabin crew member and he might be feel not good because of the वो प्रॉब्लम लाइक रेड्रेस है ये वो. एंड आई पोलाइटली मतलब मैंने पोलाइटली समझाया, मेरे भाई ने समझाया लाइक वो तो जैसे जाता रहता है ना एयरपोर्ट, तो उसे थोड़ा सा मतलब पता है जो टोर होती है ना एरोसिस की, सो इसने अच्छे से समझाया एंड माई फादर एंड मदर वॉज वो मान गए. तब मैं 11th-12th में थी, मैंने जैसे आपको बताया. तो मुझे मेरा मेन फोकस अब ये था, मुझे +2 अपनी कंप्लीट करनी है बिकॉज +2 इज़ इम्पॉर्टेंट. तो मैंने कहाँ पे थी मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने बता दिया मुझे था मैंने पहले +2 कंप्लीट करनी है, फिर आगे की सोचेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर करेंगे. और जो लड़की मतलब बहुत कम मेकअप लगाती है, मतलब कभी मतलब जैसे मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप को भी लगाया ही नहीं, मुझे आता है आई लाइक टू अप्लाई मेकअप ऑन अदर्स एंड आई ऑल्सो, बट आई नेवर यूज एक्सपेंसिव एंड टू मैनी प्रोडक्ट्स विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी टू बाई लॉट ऑफ मेकअप प्रोडक्ट्स. जो लड़कियां सच में कुछ मतलब मेकअप वगैरह नहीं करती, मतलब फैमिली बैकग्राउंड हिंदी होता है या मतलब जो भी उनकी मदर टंग होती है, उनके लिए इंग्लिश सीखना, मेकअप करना, ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी होती है. जैसे कि मेरे लिए आई वॉज स्टडीड इन पंजाब बोर्ड एज माई मीडियम इज़ इंग्लिश एंड आई यूज टू बी अ CBSE स्टूडेंट, बट थ्रू टाइम माई इंग्लिश क्वाइट वीक, मतलब मेरी इंग्लिश वीक होती गई थोड़ी थोड़ी, बट I focused on only my communication skills. Like I daily watch English movies, English songs, and I use ChatGPT a lot, literally madly. Like I conversate with it, and that is really helpful, guys. उसने मेरी इंग्लिश मुझे लगता है बहुत enhance करी. It's also encourage our confidence. क्योंकि वो फीडबैक देता है, आपको पता चलता है कहाँ गलती कहाँ नहीं. अब मेरी ग्रामर थोड़ी वीक है जहाँ मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकली मिस्टेक्स कर देती हूँ बोलते टाइम, मुझे पता है, बट मैं अगर कंटिन्यूसली बोलती रहूँगी ठीक हो जाएगा. इतनी भी बुरी नहीं है मेरी इंग्लिश, मुझे ऐसा लगता है. एज आई ऑल्सो जॉइन एन इंस्टीट्यूशन. Firstly, I would like to clear one thing that I didn't join any airline based institution. Like मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, it's a waste of money guys that. So मैंने कोई भी मतलब इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं करा, मैंने सिर्फ इंग्लिश स्पोकन का इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करा ताकि मेरी थोड़ी ग्रामर बेसिक ग्रामर क्लियर हो जाए, मेरी इंग्लिश थोड़ी एनहांस हो जाए. सिर्फ मैंने इंग्लिश के 3 महीने का कोर्स करा है जो मेरा कंप्लीट होने वाला है अब, और मुझे लगता है मैं बहुत फ़र्क करा, मैं इस इंस्टीट्यूशन ने मेरा बहुत फ़र्क करा. एंड मैं पंजाब से गाइस, तो मुझे 3 लैंग्वेजेस आती है एज यू सॉ माई प्रीवियस वीडियो, सो यू नो हाउ मेनी लैंग्वेजेस आई कैन स्पीक. मैं इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी बोल सकती हूँ. तो इंग्लिश और हिंदी इज़ मैंडेटरी इन दिस जॉब. सो हिंदी तो मुझे आती है एज माई मदर एंड फादर टॉक इंग्लिश, टॉक हिंदी ऑल द टाइम, सो माई हिंदी इज़ वेरी गुड. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई इंग्लिश टू वीक, मतलब पहले बहुत ज़्यादा वीक थी, अब मैं सोचती थोड़ा बहुत ठीक हो गया. एंड माई ऑल फ्रेंड सर्कल टॉक इन पंजाबी, सो मेरी पंजाबी बहुत चंगी है गाइस. मेरी पंजाबी डाउट ना करे कोई भी, जिन्हें पंजाबी आती है पता होना कि मेरी किसी सोच पंजाबी बोलनी आती है. सो मतलब जब मैंने +2 का मेरा रिजल्ट आया,
सबसे पहले मतलब प्लस टू के रिजल्ट आने से पहले मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स सोचा, पहले मैं क्लियर कर लूँ डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ही सबसे ज़्यादा जरूरी है, बाकी सब तो होता ही रहेगा गाइस। तो मैंने सबसे पहले पैन कार्ड अप्लाई करा, लाइक आधार कार्ड तो सबके पास होता है, मैंने पैन कार्ड अप्लाई करा क्योंकि वो 18 साल के बाद ही आ सकता था। और मैं जैसे ही मेरे मतलब लास्ट पेपर था उसके अगले दिन मेरा 18th बर्थडे था, सो मेरे लिए बहुत ऐसे अपॉर्चुनिटी थी, तो मैंने वो कर लिया, अप्लाई कर दिया। कुछ दिनों बाद मेरा पैन कार्ड आ गया, तो मेरे 2 डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए, आधार कार्ड, पैन कार्ड। रही बात पासपोर्ट की, वो पासपोर्ट मैंने अभी तक अप्लाई नहीं करा, जो कि मेजर है, मतलब मुझे पता है इट्स मैंडेटरी, अभी तक मैंने अप्लाई नहीं करा, काइंड ऑफ सम पर्सनल रीजन, बट आई विल डेफिनेटली अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। और मेरा रिज्यूम पड़ा है जी हाँ गाइस, तो ये मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ही रह रही हैं, बाकी सब हो गया। मेरी 10th और 12th की मार्कशीट मैंने लेमिनेशन करा के उसको फोटोस्टेट करा रही है। And if I'm talking about makeup, I buy makeup a lot. If you want to see my makeup products, so please comment down. I will make a separate video on it. तो जब मेरी 2 चीज़ क्लियर होगी, मतलब अभी डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, मेरे मेकअप कंप्लीट हो गया, मैं मेकअप रोज करके भी देखती हूँ, जैसे अभी भी मैंने मेकअप कर रखा है, गाइस कमेंट करके बताना। तो मैं रोज़ मेकअप ट्राई करती हूँ ताकि मेरी ग्रूमिंग थोड़ी अच्छी हो जाए। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अटायर, आई विल गाइस सच एक बात बताना भूलूँगी मैं आपको, अटायर के लिए ना झंझट मत करना, मतलब कहीं बहुत मुश्किल, मतलब कोई बहुत एक्सपेंसिव जगह से मत लेना गाइस। मैंने मीशो से ऑर्डर किया, इट वॉज अमेजिंग, क्वालिटी वॉज 100 आफ्टर 100 गाइस। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी, आप मीशो से 300-400 तक के बीच में, मतलब मेरी 300 कुछ की 250 की मेरी आई है सिर्फ और सिर्फ स्कर्ट, यस, इतना मतलब चीप प्राइस और बेस्ट क्वालिटी। अगर यही मैं ऑफलाइन जाती किसी स्टोर में लेने के लिए, वो बहुत ज़्यादा प्राइस लगा देते। आई नो, मेरे ब्रदर का मतलब जैसे क्लोथ्स वगैरह में उसको पता है, तो उसने मुझे बताया, और मैंने हील्स भी उसमें मंगाई जो जरूरी होती है, मतलब जो थी, तो वो भी बहुत अच्छी रेंज में, बहुत गुड क्वालिटी में, कंफर्टेबल, सॉफ्ट गाइस, बहुत अच्छी थी। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी मीशो से कराऊँ। मुझे कोई मीशो ने, मतलब मैं तो छोटी क्रिएटर हूँ गाइस, मुझे कोई कोलैब लुक नहीं मिलता, मैं तो जेन्युइन रिव्यू दे रही हूँ। मैंने शर्ट भी ऑर्डर कर रखी है, जब वो आ जाएगी मैं आपको ज़रूर अपना अटायर लुक दिखाऊंगी, बिकॉज आई एम टू एक्साइटेड टू गिव माय फर्स्ट इंटरव्यू। सो गाइज, आप मुझे थोड़ा सजेशन भी देना, मैंने जैसे अब तक एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, सो मुझे वॉक इन इंटरव्यू देना चाहिए। लाइक इंडिगो कभी कभार वॉक इन इंटरव्यू अप्लाई करता है, कंडक्ट करता है, सॉरी, तो मुझे एकदम वॉक इन इंटरव्यू देना चाहिए, या फिर मैं पहले ऑनलाइन असेसमेंट दूँ? जरूरी नहीं इंडिगो ही, कोई भी, मतलब और भी बहुत सारी एयरलाइंस है, एयर इंडिया, आकाशा एयर और फ्लाई 19 भी आई है, तो मतलब मुझे ऑनलाइन देना चाहिए, सीधा वॉक इन इंटरव्यू चली जाऊँ। तो प्लीज़ गाइस मुझे थोड़ा सा बताना। एंड the last and the main topic, which I believe the biggest barrier of this journey is my scars. Yes guys, I have lots of scars on my body, visible parts of my body that is not covered on my uniform. अगर मेरे पास 1 या 2 होते ना, मतलब scars, तो फिर भी ठीक था, but I have lots of scars on my body. Like if I'm showing you, this is, if you saw this, so this is my scar, this is a chicken pox mark, and this is also कहीं पे मतलब छोटे से गिर गिरा, तो मेरा ये निशान रह गया। अगर आपको नहीं दिख रहा तो ये लाइटिंग का कमाल है, और अगर आपको दिख रहा है तो ये भी गलत बात है, तो नहीं दिखना चाहिए गाइस। मेकअप करने के बाद भी तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे। 2 स्कार तो मुँह पे होंगे, जो कि मुँह तो चकाचक चाहिए उनको, बट स्टिल आई हैव 2 scars on my face, and I have also scars on my arm. लाइक ये वाला मेरा मतलब तवे पे जल के नहीं लग जाता वो, और यहाँ पे भी ना मेरा एक स्कार है, अगर आपको दिख रहा है तो, लाइक दिस इज माई स्कार, या एंड ऑल्सो यहाँ पे भी है मेरा एक स्कार, ये दिख के ये एक आम का है, 3 एक आम का है, भी दूसरा भी है गाइस। लाइक अगर आप एक स्कार की स्टोरी मांगोगे ना, तो मैं स्टोरी भी यहाँ पे भी हल्का सा, बड़े बहुत लग रहा है, इसका मुझे इतना डर नहीं है। तो ये तो मेरे हो गए, बस ये है, पैरों पे ज़्यादा है नहीं, पैरों पे होते तो चल जाती है, पैरों का इतना वो मैं सोचा ज़्यादा नहीं देखती, बट पैरों में मेरे एक ही है नहीं, बस ना मेरे एंकल पे है थोड़ा सा मार्क, जो अपने शूज़ वगैरह नहीं पता, जूते वगैरह मारने आप फिर वो निशान लगा गया ना, वो वापस। फिर यही है, मतलब मेरे जो मेजर बैरियर्स मुझे लगता है मेरी जर्नी के, जो शायद मुझे रिजेक्टेड कर दे। कम्युनिकेशन स्किल्स तो कर ही सकते हैं, आई नो माई इंग्लिश इज नॉट दैट परफेक्ट, बट आई एम कॉन्फिडेंट गर्ल दैट आई नो माई इंग्लिश इज नॉट that much bad, but yes, I can give interview in English, and I can speak English, I can understand English, I can listen English, so I believe my English is not that much barrier for my journey as compared to my scars. So guys, अब जो मेरी मेन चीज़ है, मैं इंटरव्यू क्यों नहीं दे रही हूँ, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स ही हैं, बस मेरे पासपोर्ट और रिज्यूम बन जाए, और मेरा क्या नाम है, हाँ, पासपोर्ट और रिज्यूम बन जाए, मेरी शर्ट आ जाए, मेरा टायर पूरा क्लियर हो जाए, then I will definitely give an interview, and I will definitely share you the whole experience of my interview. If I got rejected, so definitely I will share you. If I got selected, तो मैं करूँगी share. So guys, this is the whole journey of my till now. कि जब मैंने सोचा था, घर वालों को मनाया, सामान इकट्ठा करना क्या क्या ज़रूरी होता है, और फिर अब मैं क्या कर रही हूँ और मैं कब दूँगी इंटरव्यू। तो ये मेरी अब तक की जर्नी थी, जो मुझे पूरी करने में कम से कम 3-4 महीने लगे, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए एकदम से सब कुछ करना नहीं पॉसिबल। जो मिडिल क्लास फैमिली से वो जरूर अंडरस्टैंड करेंगे मेरी सिचुएशन को, और मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँ और आपको अपनी जर्नी शेयर करूँ, रियल मतलब वो वाली, मैं आई गॉट सिलेक्टेड, हाउ आई प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द इंटरव्यू। और यही मेरी जर्नी की कुछ बातें थी जो आपसे करना चाहती थी मैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फॉलो, मतलब प्लीज़ सब्सक्राइब करना मुझे, और मेरी वीडियो को लाइक करना। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज टू मी, सो यू शुड डेफिनेटली कमेंट डाउन ऑन माई दिस वीडियो, एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो एंड रिप्लाई ऑन योर कमेंट्स।
एंड लास्ट बार मैं कहना चाहती थी मेरा मेकअप बता देना गाइस कैसा लगा मतलब कैसा लगा क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम बनाया। और हाँ, मैं आपको मेकअप ट्यूटोरियल और बन ट्यूटोरियल भी जरूर दूंगी। ये तो मैंने वैसे सब बनाया है, बट मुझे बन भी बनाना आता है क्योंकि आई हैव अ लॉन्ग हेयर्स एंड आई लव टू एक्सपेरिमेंट्स ऑन माई हेयर्स। तो मैं आपको जरूर बन की वीडियो मेकअप ट्यूटोरियल दूंगी। अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। सो बाय गाइस, दिस इज द वीडियो, लव यू।